In the mid-70s, a man who came to Rajkot in search of livelihood has today become a source of livelihood for 500,000 people. A man hailing from nondescript village in Saurashtra, having attended school till class 10, is today being invited by top B schools to come and share his success story. Meet Chandubhai Veerani, Managing Director of Balaji Wafers Private Limited, the man who has redefined how packaged food business is done in India. He began his journey with his two brothers by selling chips near a small cinema hall in Rajkot. With time, the single-screen theatre downed its shutters due to competition from multiplexes. But the brothers moved on. They have travelled 2 generations with their brand Balaji to become one of the largest makers of potato chips in India. While many other snack food companies could not survive the competition from multinationals, Balaji Wafers has become a household name today, giving multinationals a run for their money. Son of a farmer, Chandubai came to Rajkot in 1974 with some financial support from the family. Fueled by the success of his chips business near the cinema hall, Chandubai decided to turn this to their core business. બીજા પાસે અમે જે માલ લેતા એ રેગ્યુલર સપ્લાયર ન મળતા એમ થયું કે જાતે અમે પ્રોડક્શન શરૂ કરીએ 1982 માં અમે બધા બ્રધરોએ ઘરે પ્રેક્ટિકલ બધું જાતે કરતા કરતા આગળ વધાર્યું. In 1989, the company set up a plant in GIDC's industrial estate in Rajkot. 82 માં લોકો એવું સમજતા કે થાલામાં વેફર મળતી હોય એ ફ્રેશ હોય ને પેક હોય એ વાસી હોય. ધીમે ધીમે અમે સારી ક્વોલિટી અને અવેલેબલી વધારે કરી સર્વિસ દ્વારા. Chandubai's success mantra is to focus into distribution. 10% પ્રોફિટ હોય અને 15% ખર્ચો થતો હોય તો પણ ત્યાં માલ પહોંચાડવો જોઈએ. ત્યારે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન મજબૂત થાય છે અને ત્યારે એક નાનામાં નાનો કસબો હોય ને ત્યાં પેકેટ પહોંચે છે, કસ્ટમર જે છે એ સેટિસ્ફાઈ થાય છે. The company has a strong network of 600 dealers in 5 states. The distribution-only model has certainly paid off. The homegrown brand from Gujarat is valued at a whopping 4,000 crore today. And brand Balaji enjoys 60 to 65% share in the wafers and snack market in Western India. The company has an annual business turnover of rupees 1,200 crore and is now spreading its wings to northern and southern markets. The company has 2 major business establishments directly employing 2,200 people. Of this, 70% workforce comprises of women. Balaji Wafers has been doing CSR activity for long, much before CSR became a norm for Indian company. A man of few words, Chandubai truly personifies the indomitable entrepreneurial spirit that is the hallmark of Indian businesses today. जय श्री कृष्ण, गुड आफ्टरनून. बालाजी की हिस्ट्री आपको मैं बोलूं संक्षिप्त में तो बालाजी शुरुआत यहाँ से होती. मैं एक जामनगर ज़िले के धुंधुराजी गांव का वतनी हूँ. वहाँ मेरे फादर को किसान खेती रिलेटेड काम 1974 में अकाल पड़ा तो चिंतन किया कि अभी शहर की तरफ जाना है. 1974 एंड में हम राजकोट आए. वहाँ पहला हमारा गोल था यहाँ हमको सेट होना है. हमको छोटा सा गोल था, हमको सेट होना है, वापस गांव नहीं जाना है. वहाँ बहुत तकलीफ़ें हैं. तकलीफ़ मतलब वहाँ बहुत ज़्यादा, आज की तारीख में जो लोगों को तकलीफ़ इतनी नहीं थी. वहाँ हमको सिर्फ 1 साल का गेहूँ मिल जाए तो तकलीफ़ ख़त्म हो जाती थी, लेकिन वो बिना बरसात वो भी नहीं होता था. तो चिंतन करके हम राजकोट आए. तो वहाँ एक सिनेमा, एस्ट्रोन सिनेमा का उद्घाटन हुआ. उसमें हमको कैंटीन में हमको नौकरी मिली 90 रुपये में. अच्छा काम किया, कोई भी काम करते थे. सिनेमा बंद हो गया, उसको 20 साल हो गया. सिनेमा छोड़ दिया, उसको 35 साल हो गया. फिर भी वो एक काम मेरे को आज याद है. 90 रुपये में काम किया था. कैंटीन के अलावा
कोई भी काम मैं करता था, कर्म से कोई बड़ा नहीं है, तो कर्म करके सिनेमा पिताजी का बना लिया। तो वो कैंटीन में हमने ये नमकीन और चिप्स बेचते बेचते 7 साल बेचा, लेकिन अच्छी रेगुलर सर्विस नहीं, क्वालिटी नहीं, एक सप्लायर, दूसरा सप्लायर, तीसरा सप्लायर। फिर हमने गांव की सारी मिलकतें बेच के 82 में हमने राजकोट में एक मकान बना लिया और वहाँ हमने घर में चिप्स बनाना शुरू किया। घर में बेच के कैंटीन में बेचा। कैंटीन में बेचते बेचते ऐसे सोचा कि चलो बाज़ार में भी बेचे, तो ल्यूना लेके मैंने बाज़ार में बेचना शुरू किया। तो लोग बोलते तू क्या कर रहा है, ये कोई बिजनेस है, ये फेरिए जैसा बिजनेस कर रहा है। मेरे लिए कोई भी काम पहले भी छोटा नहीं था, आज भी छोटा नहीं है। ना मेरे लिए काम छोटा थे, ना मैं कभी छोटा हूँ, ना कभी मैं बड़ा हूँ। मैं एक इंसान हूँ, इंसान से, इंसानियत से बड़ा बनना है, वो गोल था मेरा। तो मैं बाइक लेके बेचने जाता था तो लोग समझते थे ये फेरिया है, तू रख दे, बिकेगा तो पैसा देंगे। इसमें 5-10 लोग ही ऐसे थे कि मेरे को परेशानी करते थे, लेकिन वो परेशान जिसने किया ने उसको मैंने गुरु बनाया, उसने मेरे को आगे लाया। परेशानी है या सफलता है, दिमाग में जो चढ़ गई ने तो मुसीबत। तो मैंने दिमाग में परेशानी नहीं चढ़ाई कि परेशान क्यों कर रहे हैं ये। पहले मैं मानता कि रिटेल है, रिटेलर है, मेरे कस्टमर है। ये 5-10 लोगों ने परेशान किया ने, उसमें को सीखने को मिला मेरे को कि मेरा कस्टमर ये है नहीं, ये रिटेल राजा बाजा और बंदर, ये तो परेशान करने वाले हैं। तो मेरे को कस्टमर कौन, तो कंज्यूमर, एंड कंज्यूमर, वहाँ तक पहुँचना है। याद किसने दिलाया, इसने, कि वहाँ तक पहुँचना है तो क्या करना चाहिए, कि क्वालिटी देनी चाहिए। क्वालिटी देनी है, क्या करना चाहिए, ऑटोमेटिक डालना चाहिए। कोई हमारे पास एजुकेशन नहीं था, कोई इंजीनियरिंग नहीं था, लेकिन एक मजबूत दिमाग था, संस्कारी दिमाग था। गांव से हम पढ़े नहीं थे, लेकिन गिनती करना सीख गए थे कि ऑटोमेटिक डालेंगे बस। फिर मैं दिल्ली में आया यहाँ लगभग 89 में, प्रगति मैदान में। तो मेरे को तो इंग्लिश भी नहीं आता था, तो फिर एक आदमी को साथ में ले गया, दाल वाला था वहाँ का, राजकोट का। तो मैंने बोला इसको ज़रा पूछो ने, तो वो बोलते बजट कितना। मैंने बोला बजट मतलब क्या, कि पैसा कितना खर्चना है। मैंने को 10-20 लाख खर्चेंगे। उसने बोला कि 2 करोड़ से तो नीचे पुराना प्लांट भी नहीं आता। फिर हमने ढूंढते ढूंढते एक मैथरन प्लेट पूना की कंपनी थी, 50 लाख में प्लांट ले लिया। उसने जगह के मुताबिक और पैसा का मुताबिक प्लांट बना दिया, और हमने ले लिया 92 में इंडस्ट्रियल एरिया GIDC में। फिर वो चला नहीं। ज़्यादा मुसीबत इसलिए आ गई कि वो कंपनी भी बंद हो गई। 2 महीना सपोर्ट मिला। फिर हम 3 ब्रदर थे कि तूने किया, मैंने किया, और नहीं हमने किया कि मैंने ये सोचा कि काम करेंगे उसकी गलतियाँ होगी, तू मैं करेंगे तो कोई शॉर्टकट पकड़ लेगा। हमने रोड पे आ गया तो क्या हुआ, सिंह चने खा के जी सकते हैं, चलो हम ही ये चालू करेंगे। तो मैंने और मेरा छोटा भाई कन्नू भाई दोनों ने मिलके वो प्लांट 6 महीने में शुरू कर दिया, और हम प्रैक्टिकल इंजीनियर बन गए। फिर हम आहिस्ते आहिस्ते जो बाइक से लेके रिक्शा ली, 20,000 की लोन ली, एक टेम्पो लिया, 1,80,000 की लोन ली, 3,60,000 की GIDC में जगह ली। फिर लाखों, करोड़ों, 25 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़ की लोन ली, और आज तक हमने लगभग 1,000 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्ट किया जगह, बिल्डिंग और मशीनरी में। और लास्ट हमारा यूपी का प्लांट शायद 1-2 महीने में शुरू होगा। वहाँ अभी 100 करोड़ से शुरू होगा, शायद 500 करोड़ तक वो पहुँच जाएगा। वहाँ 1 रुपये की लोन नहीं लेनी पड़ेगी। इसके बाद भी 2 फैक्ट्री डालेंगे, 1 रुपये की लोन नहीं लेनी पड़ेगी। इतनी
ताकतवर ये कंपनी हो गई है। एकदम घर से शुरू किया था, तब 5-7 लोग काम कर रहे थे। आज हमारे प्रीमाइसिस के अंदर ही एक राजकोट में फैक्ट्री है, एक वलसाड़ में है, एक इंदौर में है, यूपी अभी शुरू होगा। ये 3 छोटी फैक्ट्री है। वो फैक्ट्री में 7,000 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं और 5-7 सप्लायर थे। आज हमारे 3,000 सप्लायर हैं। इसमें से बिल्डिंग और मशीनरी छोड़ के ज़्यादा कृषि रिलेटेड ही हमारी सप्लायर है। तो मैं तो एक किसान का बेटा हूँ, मेरे को पता है किसान तक मैं पहुँचता हूँ, खेत तक पहुँचता हूँ। आलू कैसे इसको बनाना है, आलू लंबे टाइम तक कैसे रहना चाहिए, उसका स्टोर कैसे रहना चाहिए, उसकी क्या समस्या है, मैं देखता हूँ। तो पहले मैं आज से 20-25 साल पहले जाता था तो वो बोलते हैं आप छोटे आलू नहीं लेते हो 45 mm के। वो आलू हमको कभी कभी ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है तो फेंकना भी पड़ता है और फेंकने का भी पैसा देना पड़ता है, नुकसान हो जाता है। तो मैंने सोचा कि मेरा जो सप्लायर, मेरा किसान अगर मजबूत नहीं है तो मेरी कंपनी मजबूत नहीं हो सकती। तो उसकी समस्या दूर करके मैंने उसको मजबूत किया। उसका एक मैंने आनंद में प्लांट डाल दिया, एक प्लांट बाद में यूपी और पंजाब का प्रॉब्लम था और एक यहाँ पंजाब में एक पोटैटो का पाउडर का प्लांट डाल दिया, उसकी समस्या दूर हो गई। फिर आलू आज से 35 साल पहले वो देसी आलू आता था लोकर और ये मनाली हमारे गुजरात, और लंबे टाइम तक टिकता नहीं था। फिर वो हॉलैंड से एक लेडी रोजिटा आलू आया और पूना में माहिर कंपनी के पास उसकी एजेंसी आई और वो आलू हमने शुरू किया कि एक किसान के साथ, और बोया। नहीं बोते थे तो हमने 1-2 रुपया ज़्यादा दे दिया रेट। फिर उसको अगले साल कितनी अंतर से बोना है, किससे उसको लंबे टाइम तक टिकता है, तो वो आलू में हम आगे बढ़ते बढ़ते आज हमारे इंडिया के किसान, गुजरात के किसान जो है वो पूरे इंडिया में नंबर 1 किसान बन गए। और वो जो रॉ मटेरियल हमको देते हैं और हमारी तीनों फैक्ट्री, बड़ी फैक्ट्री में प्रोसेस होता है, वो पर डे का 7,000 मैट्रिक टन पोटैटो प्रोसेस होता है। 5,000 मैट्रिक टन अलग राइस है, राइस ग्रीड है, बेसन है, दालें हैं। ये इसमें से एक दाल वाला यहाँ भी बैठा है। वो 500 मैट्रिक टन वो भी प्रोसेस होता है और ये माल हमारी फैक्ट्री में तैयार होता है, कार्टून तैयार होता है तीनों फैक्ट्री में। वो बेचने के लिए 15 बड़े सॉल्ट डिस्ट्रीब्यूटर है और उस खुद के जो हमने देख रहे थे 600 ट्रक है। वो 600 ट्रकों द्वारा वो 18 राज्यों में डिलीवरी देते हैं और वहाँ 2000 डीलर हैं। एक छोटा डीलर है, यहाँ 5 रिक्शा है और बड़ा डीलर है, यानी 100 रिक्शा है। 3000 सप्लायर है, वो भी एक छोटा सप्लायर है, वो वहाँ 50-100 आदमी काम कर रहे हैं। बड़ा सप्लायर है, वो 200-300 आदमी काम कर रहे हैं। वो सप्लायर है, ठीक है, हमारा ही काम नहीं कर रहे, दूसरे का भी काम कर रहे हैं। और ये जो 200 डीलर को माल दे रहे हैं और वो डीलर एक एक रिक्शा से उसके एरिया में माल बेचते हैं। वो लगभग 25-30 लाख दुकानों में माल डिलीवरी करते हैं। तो मेरे साथ लाखों करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं। आज के प्रोफेशनल लोग बिजनेस करते हैं और मैं एक प्रैक्टिकल बिजनेस कैसे करता हूँ। मैं एक इंसान को जिम्मेदार इंसान बनाता हूँ, ना कि इसको टारगेट देना। टारगेट मतलब त्रास, स्कीम बनाना। इसे मैं क्या करता हूँ, सेटिस्फाई करना चाहिए लोगों को, उसको डिलीवरी मिलनी चाहिए। हमारे पास मार्केट मतलब डिलीवरी, मार्केट मतलब अच्छी प्रोडक्ट, अच्छा रॉ मटेरियल, अच्छा पैकिंग, इसके अलावा कुछ भी नहीं है हमारे। हम कल दिल्ली भी आएंगे, शायद मार्केट करेंगे, तो हमारे कोई स्कीम नहीं होगी। कोई भी नमकीन पूरे इंडिया में, लेज ने बड़ी बड़ी स्कीम निकाली हमारे सामने, लेकिन एक भी नहीं चली। आज भी उसकी फैक्ट्री पे जाएंगे तो हमारा पैकेट उसके टेबल पे पड़ा होगा, हमारी चर्चा वो करते होंगे।
एक गांव का आदमी एक बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी को पानी पिला देता है, वो कैसे? एक मानसिक इरादा, ना कभी मैं छोटा हूं ना मैं कभी गरीब हूं। इंसान कभी जीवन में गरीब नहीं होता, इंसान कभी दुखी नहीं होता। नो डाउट, सुख दुख, निष्फलता सफलता इस जीवन का पार्ट है। सुख भी देखो, माल्या को दिमाग में चढ़ गया, क्या हाल हो गया? तो ऐसा नहीं है पैसों से आदमी सुखी होता है। दिमाग में कोई भी चीज चढ़ गई ना, उस दुख लाता है। हम एक इंसान है, इंसान का कर्म ही धर्म है। वो कर्म का प्लेटफॉर्म मैंने कहां से बनाया? फैमिली से। सबसे मुश्किल काम फैमिली को जॉइंट रखना। हमारा महाभारत इतिहास है कुटुंब में, तो सुबह सटासटी बुला दो, झगड़ा कर लो, शाम को दोपहर को शाम को दूसरे दिन भूल जाओ क्या हुआ था। ये तो कॉमन है, हमारा इतिहास है झगड़े का। हमको दिमाग में भूल जाना है और इसको जॉइंट रखना है। जॉइंट रखने से कोई आदमी चलता है, नहीं चलता है, वो भी साथ साथ चल जाता है। साल में एक भी उसकी कभी ज़रूरत पड़ जाती है। एक नंबर 1 है, इसके साथ में 3 जीरो लगा दो, 1000 हो जाता है। हमारे फैमिली के अलावा मजबूत बेज नहीं है। हमारे कभी काफ़ी प्रॉब्लम हुआ, लेकिन मैंने सहन किया, सहन करके एक मजबूत प्लेटफॉर्म बनाया। बाद में एक भी कोई मानव जात ऐसा नहीं है कि मेरे साथ नहीं जुड़ा हुआ है। मानव जात को जोड़ा, मानव जात को जोड़ना वो कर्म ही धर्म है। ये मानव जात को जोड़ के उसको सेटिस्फाई किया। कोई भी छोटे से छोटा वर्कर है, आज भी मेरे साथ डायरेक्ट बात कर सकता है। कोई भी छोटे से छोटा डीलर है, डायरेक्ट बात कर सकता है। आप कहीं भी मेरे डीलर को, कोई भी एरिया में यूपी में जाओ, नज़ीक पड़ता है, डीलर को मिलो। और यूपी में अदर कंपनियों का भी डीलर होगा, मिलो। तो कि डायरेक्टर छोड़ो, हमारा मालिक, हमारा मेन मैनेजर भी बात नहीं करता। ईगो होता है। ईगो हमारा कब बड़ा होता है कि हमको छोटे से छोटा आदमी रिस्पेक्ट करता है, तभी हमारा ईगो बढ़ता है। आज मेरा ईगो बढ़ा हुआ है, मेरे साथ मोदी भी सुनता है, तो इसे तो कोई हमारा देश में बड़ा नहीं है। अमित शाह भी सुनता है। अभी मैं कल ही निर्मला सीतारामन को मिल के आया। पूरे नमकीन जगत को बड़ी समस्या ही थी, कोई भी नमकीन वाले को पूछ लो, मैंने दूर कर दी, इतना समझा दिया। एक गांव का आदमी सारा लोगों को समझा सकता है, तो क्यों? एक हम इंसान है, इंसान सब कुछ कर सकता है। आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन आप क्या दिमाग को घिस करके डरपोक बना देते हो। ये करेंगे तो ये होगा, ये करेंगे तो ये होगा। सारा खत्म हो जाएगा, 2 हाथ पैर नहीं रहेगा। साला 2 रोटी हम खा नहीं सकते, दांत दिया भगवान ने, 2 रोटी नहीं देंगे। सिंह चने खा भी जी सकते हैं। कोई भी स्थिति है, हमको मानसिक मजबूत है तो हम जी सकते हैं। मानसिकता होनी चाहिए। मानसिकता का गेम वो जीवन है। मानसिकता का गेम बर्बादी है। तो हमको कैसे जीना है? आज तक हम कोई स्कीम नहीं करते, किसी को त्रास नहीं देते, कोई टारगेट नहीं देते। फिर भी छोटी कंपनी है, आप बड़ी कंपनी है, वहाँ हमारा रास्ता हो जाता है। कल हम दिल्ली में आएंगे, देख लेना, अपने आप हमारा रास्ता दे देंगे। क्यों? कि हमको एक छोटे से छोटे कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना, वही हमारा कर्म ही है, हमारा धर्म ही है। इंसान इसको बोलते हैं, जीव मात्र को दया रखे, मानव मात्र को जोड़ता रहे। तो मैंने मानव मात्र को जोड़ के एक बड़ा मिसाल बना दिया, बड़ी बड़ी कंपनियों को पानी पिला दिया। थैंक यू, आभार। कोई भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं उसका अच्छा नहीं सच्चा जवाब देने की कोशिश करूंगा। Anybody have any questions you can ask? All right, so can we all, yeah, sir, please.
आपने अपनी लाइफ हमारे साथ शेयर की, वी आर हाईली इलेटेड। ऑब्वियस है, हम भी ये जो बेसिक चीज़ आपने बताई मानसिकता की, जो आपने बताई कि रेस्पेक्ट फॉर लोअर स्टेटा पीपल, ऑब्वियसली ये सब चीज़ें जो आपने बताई हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एटलीस्ट मैं तो इम्बाइब करूँगा और अपनी फैमिली में भी अपनी फर्दर जनरेशन्स को भी यही त्रास देंगे, इनपुट्स देंगे कि हर किसी को इक्वल रेस्पेक्ट देना है इरेस्पेक्टिव ऑफ द सोशल स्टेटस। मेरे लिए आई थिंक दैट इज़ द इनपुट्स, ये चीज़ मैंने आपसे आज सीखी है। फॉलो तो करना चाहते हैं, कई बार फॉलो नहीं हो पाता है। जहाँ पे ईगो आता है, जो आपने आज बताया ईगो होता है, कॉपी होता है। मैंने जीवन से पूरी जर्नी 48 साल की आपको संक्षिप्त में बता दी। बिल्कुल, थैंक यू आप यहाँ पे आपको सर्वे कर सकते हैं, इसमें कोई अच्छी बात नहीं है, सच बात है। थैंक यू। Thank you so much, sir. I would like to invite Mr. Rakesh. वीरानी जी, आपने बहुत सरल शब्दों में सब बताया अपनी सक्सेस स्टोरी के बारे में। तो आपने ऑटोमेशन को अपनाया, आपको लगा कि ऑटोमेशन से आगे बढ़ना है, क्वालिटी को लगातार बनाना है, तो ऑटोमेशन चाहिए। अभी हम जो बात कर रहे हैं इस फोरम में इंटेलिजेंट ऑटोमेशन की बात कर रहे हैं, राइट? तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या आपने अपनी फैक्ट्री को और भी ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए क्या आपने इसको भी अपनाया है या अपनाने की सोच रहे हैं? नहीं, मैंने ये किया कि छोड़ दिया। मैंने छोड़ दिया, मेरे बच्चों ने संभाल लिया। कई लोग क्या बोलते, बेटे 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 करके बेटे को बड़े नहीं होने देते। वो जीवन के अंत तक कर्म करते रहना चाहिए, चंचुपात बंद कर दो। मैंने बंद कर दिया 15 साल पहले, तो उसने संभाल लिया। आज मेरे बच्चे संभाल रहे हैं, उसने डेवलप किया है। वो एक तरीका है, छोड़ो, कोई लेने वाला तैयार है। हमको विश्वास ही नहीं होता कि नहीं संभालेंगे, तथास्तु वो नहीं संभालेंगे। पहले तो ये किया। दूसरी जो आप बात बोल रहे हैं, समय ऐसा है कि समय के साथ चलो, समय सबको सेम मिलता है, समय को रिस्पेक्ट देता है, वो समय उसको रिस्पेक्ट देते हैं। मैंने समय पे छोड़ दिया, मेरे बच्चों ने समय पे संभाल लिया, तो वो आज मैं ये बता सकता हूँ कि वर्ल्ड में शायद मेरे पास टेक्नोलॉजी है ना, वर्ल्ड में नहीं होगी। वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी में अमेरिका में जाके देख लो और मेरी कंपनी में आओ, मैं दिखा दूंगा। उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं होगी, तभी सेटिस्फाई होते हैं एंड कंज्यूमर, बातों से नहीं होता। तो समय के साथ मैंने बच्चों को संभाल दिया तो वो चलेंगे, मैं नहीं चल सकता। मैं प्रैक्टिकल हूँ, मेरे एम्प्लॉय प्रैक्टिकल है, मेरे बच्चे प्रोफेशनल है, उसके स्टाफ प्रोफेशनल है, दोनों को मिलन करवाना मेरा काम है, वो कर रहा हूँ। आज भी मैं क्वालिटी देख रहा हूँ, वो मेरा जीवन है। तीन आज भी मेरी 67 ईयर्स से 3 बार अंदर क्वालिटी देखने जाता हूँ, डायरेक्ट प्रोसेस। वो मेरा जीवन है, बिजनेस धंधा नहीं है, पैसा कमाने। मैं तो नारायण नारायण करता रहा, लक्ष्मी तो अपने आप आई। तो समय के साथ तो बदलाव, नहीं तो समय के साथ नहीं चलोगे तो समय अच्छे को छोड़ देते हैं। तो दिल्ली का पुराना 10 लोग गिन लो, वो पैसा वाला होगा, आज नए लोग पैसे वाले होंगे, क्योंकि उसके पास है, जिसके पास है वो खत्म। All right, thank you so much, sir.